Good morning, dear students. How are you today? I hope you are fine at home. Welcome back to science class. Today we are going to start lesson number 16, Festivity and Festivals. In this lesson we will learn about harvest festivals. In the previous period we learned about national festivals. I hope that what I explained to you in the previous period well understood by me. So now let's start. Open page number 95. Please take your pencil, write CW, and today's date is 4 March 2021 and day is Thursday. Dear students, please take your highlighter with you to highlight the important sentences. Harvest festivals. Dear students, what is the meaning of harvest festivals? Yes, harvest festival are those that occur at the time of the main harvest of a particular region. Harvest festival are those that occur at the time of the main harvest of a particular region. हार्वेस्ट फेस्टिवल वे हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया की मेन हार्वेस्ट मीन्स मुख्य फसल के समय सेलिब्रेट करते हैं. हार्वेस्ट फेस्टिवल इज अ सेलिब्रेशन ऑफ द फूड ग्रोन ऑन द लैंड. ओके डियर, नाउ रेडी टू रीड. हार्वेस्ट फेस्टिवल. Harvest festival are celebrated with great zeal in our country as we have an agriculture economy. Highlight this sentence. Harvest festival हमारे देश में बहुत उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि हमारे पास एग्रीकल्चर इकोनॉमी मीन्स कृषि अर्थव्यवस्था है. Harvest time is a time of a great celebration when we thank God for providing us with rain and sunshine for our crops. Highlight this sentence. जब हम अपनी क्रॉप्स के लिए रेन और सनशाइन मीन्स बारिश और धूप प्रोवाइड करने के लिए गॉड को थैंक यू कहते हैं मीन्स भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं. हार्वेस्ट टाइम इज डिफरेंट in different parts of the country as the climatic conditions are different. ओके, तो देश के डिफरेंट पार्ट्स में हार्वेस्ट का टाइम ये अलग अलग है क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस ये डिफरेंट है. ओके डियर, तो हार्वेस्ट का समय ये बहुत अच्छा होता है. लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस हार्वेस्ट फेस्टिवल. आइए इन हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के बारे में अधिक जानें. Pongal and Makar Sankranti. Pongal is 4 days long harvest festival celebrated in Tamil Nadu which coincides with the festival Makar Sankranti celebrated throughout India as the winter harvest. Highlight this sentence. पोंगल 4 days का है. तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाने वाला हार्वेस्ट फेस्टिवल जो मकर संक्रांति इस फेस्टिवल के साथ पूरे इंडिया में विंटर हार्वेस्ट मीन्स सर्दियों की फसल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. मकर संक्रांति यूजुअली फॉल्स ऑन जनवरी 13. पोंगल सेलिब्रेशन कंटिन्यू टिल द 16. जनरली हम लोग मकर संक्रांति ये 14 को सेलिब्रेट करते हैं. ओके, मकर संक्रांति आमतौर पर 14 जनवरी को आती है और पोंगल ये 16 डेट तक सेलिब्रेशन किया जाता है. On the first day, Lord Indra, the supreme ruler of clouds that give rains in worship, is worship. First day, Lord Indra, बारिश देने वाले बादलों के सुप्रीम रूलर मीन्स महाराजा की पूजा की जाती है. On the second day, rice is boiled in, turn your page, milk outdoors in earthenware pot and is then symbolically offered to the sun god. Second day, राइस को earthenware pot मीन्स मिट्टी के बर्तन में मिल्क के साथ बॉईल किया जाता है और फिर सिंबॉलिकली ऑफर्ड मीन्स प्रतीकात्मक रूप से सन गॉड सूर्य भगवान को अर्पित किया जाता है. The third day is known as मट्टू पोंगल. थर्ड डे को मट्टू पोंगल के रूप से नाम से जाना जाता है. मल्टी कलर बिट्स, टिंकलिंग बेल्स,
sheaves of corn and flower garlands are tied around the neck of the cattle. They are offered pongal rice and worship. Cattle means गाय बैल चराने वाले जो ग्वाल रहते हैं. ओके डियर. तो उनके गले में मल्टी कलर्ड बीड्स, टिंकलिंग बेल्स, कॉर्न और फ्लावर्स की गार्लैंड मतलब मालाएं बांध दी जाती है. फिर उन्हें पोंगल राइस चढ़ाया जाता है और फिर उनकी पूजा की जाती है. इट इज अ टाइम ऑफ फेस्टिविटी फॉर वन एंड ऑल. यह एक और सभी के लिए जो फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल का समय सेलिब्रेशन का है. नाउ नेक्स्ट, लोहरी. लोहरी इज वन ऑफ द मोस्ट celebrated harvest festival in Punjab, which also falls on 13 January every year. Highlight this sentence. लोहरी पंजाब में सबसे ज़्यादा मनाया जाने वाला हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो हर साल 13 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है. It is a time for people to offer thanks to God for His benevolence and pray for bountiful harvest in the coming season. यह लोगों के लिए एक समय है कि भगवान के प्रति अपनी बेनवोलेंस मतलब बेनफेक्शंस मीन्स कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए थैंक्स धन्यवाद दे और आने वाले सीजन में भरपूर फसल के लिए प्रे करे, प्रार्थना करे. The rabi crops are sown in October and harvested in the month of March और April. रबी की क्रॉप्स अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च या अप्रैल के मंथ में कटिंग की जाती है. लोहरी मार्क्स द रेस्ट पीरियड जस्ट बिफोर द कटिंग ऑफ द क्रॉप्स. क्रॉप्स की कटिंग से ठीक पहले लोहरी का सेलिब्रेशन का जो पीरियड रहता है वो उसके ओर संकेत करता है. द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विद इमेंस गाइटी एंड प्लेजर्स. हाईलाइट दिस सेंटेंस. फेस्टिवल को बहुत उल्लास और खुशी के साथ मनाया जाता है. भांगड़ा एंड गिड्डा फोक डांसेस ऑफ पंजाब आर परफॉर्म एवरीवेयर. भांगड़ा और गिड्डा यह पंजाब का फोक डांस है जो हर जगह अपना प्रदर्शन करते हैं, परफॉर्म करते हैं. Bonfires, dancing, community dinners are a common sight during the celebration. फेस्टिवल के दौरान बोनफायर, डांसिंग, कम्युनिटी डिनर मतलब सामूहिक खाना एक कॉमन दृश्य है. लाइटिंग बोनफायर्स इज सिंबॉलिक ऑफ प्रेयर्स ऑफर्ड टू अग्नि फॉर बाउंटीफुल क्रॉप्स एंड प्रॉस्पेरिटी. हाईलाइट दी सेंटेंस. लाइटिंग बोनफायर्स प्रेयर्स का सिंबल है जो कि क्रॉप्स और प्रॉस्पेरिटी मतलब फसल और समृद्धि के लिए अग्नि को मीन्स अग्नि देवता को दिया जाता है. द डे इज मार्क विथ थ्रो मैरी मेकिंग एंड जॉय अमॉन्ग पीपल. यह दिन पूरी तरह से लोगों के बीच आनंदमय बनाने और खुशी के साथ सेलिब्रेट करने की ओर संकेत करता है. नव बैसाखी. बैसाखी इज अनदर पॉपुलर हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन 13 अप्रैल एवरी ईयर. हाईलाइट दिस सेंटेंस. बैसाखी एक और पॉपुलर हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है. इट इज अ सेलिब्रेशन फॉर हार्वेस्टिंग ऑफ द रबी क्रॉप, विंटर व्हीट क्रॉप. हाईलाइट दिस सेंटेंस. यह रबी क्रॉप जो विंटर व्हीट क्रॉप की कटिंग के लिए एक फेस्टिवल है. इट ऑल्सो मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर. अगेन हाईलाइट द सेंटेंस. यह न्यू ईयर की शुरुआत का भी सिंबल है. द फेस्टिवल इज अ टाइम फॉर थैंक्सगिविंग, रिलैक्सेशन एंड फीस्ट. यह फेस्टिवल थैंक्सगिविंग, रिलैक्सेशन और फीस्ट मीन्स दावतों के लिए होता है. फेयर्स आर ऑर्गेनाइज एंड मेनी कल्चरल प्रोग्राम्स एंड डांसेस आर परफॉर्म. फेयर मीन्स मेले ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और कई प्रकार के
कल्चरल प्रोग्राम्स और डांसेस किए जाते हैं। मेन एंड वुमेन बाय न्यू क्लोथ्स एंड ज्वेलरी। मेन और वुमेन्स न्यू क्लोथ्स और ज्वेलरी परचेस करते हैं, खरीदते हैं। नाउ नेक्स्ट, ओनम। ओनम इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड सेलिब्रेटेड फेस्टिवल ऑफ केरला। हाईलाइट दिस सेंटेंस। ओनम यह केरल के सबसे पॉपुलर और फेमस फेस्टिवल में से एक है। इट इज अ टाइम फॉर एवरी वन to reap the benefits of a good harvest after a year of hard work and labor. Highlight this sentence. यह सभी के लिए एक साल की हार्ड वर्किंग मीन्स कड़ी मेहनत और श्रम के बाद अच्छी फसल के बेनिफिट्स को प्राप्त करने का समय है। ओनम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ पॉपुलर किंग महाबली, who according to a popular belief visits his subject on this day. Highlight this sentence. ओनम फेस्टिवल पॉपुलर किंग महाबली की याद में सेलिब्रेट किया जाता है, जो एक पॉपुलर मान्यता के अनुसार इस दिन अपने प्रजा से मिलने जाते हैं, मीन्स वो दौरा करते हैं अपना राज्य का। The festival is a time for Thanksgiving. यह फेस्टिवल का समय थैंक्सगिविंग के लिए होता है। The famous snake boat race is organized every year to mark the festivals. फेस्टिवल को संकेत करने के लिए फेमस स्नेक बोट रेस, ये जो है आपको शो हो रही है, ये हर साल ऑर्गेनाइज की जाती है। It is a season of dances, songs and worship among other festivities. यह अदर फेस्टिवल्स के दौरान जैसे डांसेस, सॉन्ग और पूजा का सीजन है। Women wear new sarees, they dress up the children in colorful clothes. Women न्यू साड़ीज पहनती है, वे अपने बच्चों को कलरफुल क्लोथ्स पहनाती है। The traditional Pukkalam, a flower mat adorn the courtyard of almost every house. ट्रेडिशनल पुक्कलम, ओके, जो कि एक फ्लावर मैट है, लगभग हर घर के आंगन को डेकोरेट करती है। Among the various dishes cooked during the festival, पायसम is most popular. फेस्टिवल के दौरान पकाए जाने वाले कई प्रकार के डिशेस में से पायसम ये सबसे पॉपुलर है, लोकप्रिय है। बिहू इज ऑब्जर्व्ड विद इमेंस जॉय एंड गैटी इन द स्टेट ऑफ असम। बिहू असम स्टेट में बहुत खुशी और उल्लास के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। Celebrated to mark the change of season, it is celebrated thrice a year. Highlight this sentence. सीजन के चेंज की ओर संकेत करने के लिए यह सेलिब्रेट किया जाता है कि जो साल में 3 बार सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, ये बिहू जो फेस्टिवल है ये साल में 3 बार सेलिब्रेट किया जाता है और सीजन के चेंज होने की ओर वो मार्क करता है, संकेत करता है। The history of Bihu celebrations can be traced to 3500 BC, when it was celebrated for around a month. In the present times, it is however celebrated for a week. BC means before Christ, means जो जीसस क्रिस्ट थे उनके जन्म के पहले ये बिहू का सेलिब्रेशन का जो एक हिस्ट्री है। ओके, बिहू सेलिब्रेशन में हिस्ट्री का पता लगाने के लिए 3500 बिफोर क्रिस्ट से लगाया जा सकता है, जब इसे प्रेजेंट टाइम्स में लगभग 1 मंथ के लिए सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन फिर इसे बाद में 1 वीक के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। द फर्स्ट ऑफ द 3 बिहूज इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, coinciding with other harvest festival. 3 बिहू में से फर्स्ट
साल में 3 बार ये सेलिब्रेट किया जाता है बिहू फेस्टिवल। उसमें से जो एक है वो अप्रैल मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है अदर फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल के साथ। इट इज अ टाइम फॉर रिजॉइसिंग एज वेल एज प्रेइंग फॉर बाउंटीफुल हार्वेस्ट। यह आनंदित करने के साथ साथ भरपूर फसल के लिए भी प्रे करने का समय है। द एंटायर स्टेट ऑफ असम इज इन फेस्टिव मूड ड्यूरिंग दिस टाइम। पूरा असम स्टेट इस समय फेस्टिवल मनाने के मूड में है। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? नेक्स्ट पीरियड वी विल लर्न अबाउट रिलीजियस फेस्टिवल। Okay, bye dear. Take care. Stay home. Stay safe. Thank you.